کہ الیکٹرل کوڈ آف کنڈکٹ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ 10 بجے تک پبلک میٹنگ کر سکتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ پولیس والوں کو ہم نہیں چاہ رہے. کبھی ہمارے کو بولا گیا کہ 8 بجے تک ہی ٹائم ہے. اگر 8 بجے تک ٹائم ہے تو میں گزارش کروں گا ایس پی صاحب سے کہ کل اگر تلگو دیشم کے چندرا بابو نائیڈو آئیں گے یا بی جے پی کا مودی آئیں گا یا پھر وائی ایس آر کے جگن موہن ریڈی آئیں گے، ان تینوں کو آپ لوگ 8 بجے تک ٹائم دینا. کیونکہ اگر ہم کو 8 بجے تک ٹائم ہے تو ان کو بھی 8 بجے تک ٹائم دینا. نہ جگن موہن ریڈی، نہ چندرا بابو نائیڈو، نہ کوئی کانگریس کے تلگو دیشم کے لیڈر میرے سے بڑے ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. قانون کی نظر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. میں مسلمان ہوں، اگر میں دلت ہوں تو میرے کو بھی ریڈیوں کے برابر رائٹس ہیں. اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں دلت ہوں، اگر میں بیکورڈ کلاس ہوں تو میرے کو اپر کاسٹ کے برابر رائٹ ہے. تو میں پولیس کے فیصلے کو مانتا ہوں. 8 بجے آپ بول رہے، 8 بجے ٹھیک، میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. مگر یہ غلط بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بول رہا 10 بجے تک، آپ 10 PM تک پبلک میٹنگ کر سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک ڈیسیشن لے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ کرنول کے ایس پی، ادونی کے ڈی ایس پی، یہاں کے انسپیکٹر صاحب پورے پولیٹیکل پارٹیز کو 8 بجے کا ہی ٹائم دیں گے. 8 بجے سے کوئی نہیں بڑھیں گا. اگر 8 بجے سے بڑھیں گا تو میں کمپلین کروں گا. الیکشن کیوں لڑتے ہم لوگ؟ الیکشن اس لیے لڑتے کہ عوام کے درمیان میں جا کے ہم اپنی بات کو رکھیں گے. عوام کو ہماری بات پسند آئی تو عوام ہمارے کو ووٹ ڈالیں گی، پسند نہیں آئی تو ووٹ نہیں ڈالیں گی. اگر اس میں بھی اگر آپ روک دیں گے ہمارے کو، نہیں یہاں نہیں کرنا، وہاں کرنا، وہاں نہیں کرنا، یہاں کرنا، ایسا کرنا، اتنے لوگ آنا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے مجھے بتائیے آپ؟ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ہم کو ہمارا رائٹ ہے پورا بولنے کا. اگر آج منلسٹ پارٹی ادونی کو آئی تو کون سا بڑا کام ہو رہا؟ کیوں اتنا ڈر رہے کانگریس والے؟ ڈرنے کی بات ہی کیا ہے؟ ہم ڈرانے کو نہیں آئے، ہم لوگوں کو ملانے کو آئے. میرے بھائی میری بات سنو، ابھی ٹائم نہیں ہے تو پولیس والے بولیں گے 8 بج گئے. میں یہاں پر کیوں آیا؟ میں یہاں پر سب کو ملانے کو آیا. میں یہاں پر لوگوں کے دلوں کو ملانے کو آیا ہوں، اور میرا وہی کام ہے. ہم کسی کو توڑنے کو نہیں آئے، ہم یہاں ملانے کو آئے ہیں. اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تلگو دیشم پارٹی کو، کانگریس پارٹی کو، بی جے پی کو، وائی ایس آر کو. ارے بھائی ہمارا رائٹ ہے. ابھی بھی ہم یہاں آئیں گے، کل بھی آئیں گے. آج سے 2 سال پہلے یہاں پر گڑبڑ ہوئی تھی. جب کہاں گئے کانگریس پارٹی والے؟ یہاں پر گڑبڑ ہوئی تھی. ہمارے دکانوں کو، سیل فون کی دکانوں کو لوٹا گیا تھا. کوئی آئے؟ ٹی ڈی پی والے آئے؟ ہمارے گھروں کو نشانہ بنایا گیا. ہم جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکے 2 سال پہلے. کوئی وائی ایس آر سی پی کے لوگ آئے تھے. آپ بولو، آپ ہم آئے تو سب کو ایک ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو غلط بات ہے. ہم اس وقت بھی آئے تھے، ہمارے بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ہم گورنمنٹ میں نمائندگی کرے. ہمارے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری آندھرا پردیش لڑیں گے. جیت اور ہار تو اللہ کے ہاتھ میں. میں اپنی زندگی میں اگر کامیاب
نہیں کر سکا تو یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب کر کے دکھائیں گے. تو اننت کرنول میں ایم پی کینڈیڈیٹ رہیں گا ہمارا, کرنول کی اسمبلی سے ہمارا ایم ایل اے کینڈیڈیٹ رہیں گا, نندیال سے انشاءاللہ ہمارا ایم ایل اے کا کینڈیڈیٹ رہیں گا, ادونی سے بھی رہیں گا انشاءاللہ تعالی ہمارا ایم ایل اے کینڈیڈیٹ. ڈرا رہے میرے بھائی, حیدرآباد بھی آپ کو آنا ہے نہیں ہے, یہ ڈرانے کا کام مت کرو آپ, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم کوئی چھوٹے پاپا نہیں ہے, دودھ پیتا بچہ ہمارے کو بول رہے ہیں یہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. یہ ٹائم بہت ہوگا تمہارا, یہ ڈرانا بھول جاؤ. یہ آج کا نوجوان بچہ سب کو ڈرانے کو تیار ہے. تو میری آپ سے گزارش کیا ہے کہ یہ مجلس پارٹی نے ڈیسیشن لیا کہ کرنول کی پارلیمنٹ میں ہمارا ایم پی کینڈیڈیٹ, کرنول کی اسمبلی سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ, نندیال سے اسمبلی سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ, ادونی سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ, اننت پور سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ, ہندو پور سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ, ہر جگہ سے ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ کھڑے رہے گا. کتنا روک سکیں گے آپ, روک کے دیکھ لو, نہیں روک سکیں گے ہمارے کو آپ. یہاں پر پالیٹکس ہوں گی, ایم آئی ایم بھی اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ انہوں آ کے بولنے سے سب ووٹ ڈالیں گے, نہیں ڈالیں گے ووٹ. میں ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں سے, ہمارے دلت بھائیوں سے, ہمارے ایس سی ایس ٹی بھائیوں سے بول رہا ہوں کہ آپ آؤ, ہم لوگ 70% ہیں, ہم لوگ 70% ہیں. اگر ہم لوگ مل جائیں گے, ایک ہو جائیں گے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ہمارے کاپو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ ایک مرتبہ چرنجیوی کا ساتھ دیے, انہوں جا کے کانگریس کے گود میں بیٹھ گئے. میں ہمارے کاپو بھائیوں سے بول رہا ہوں, آپ ہمارا ساتھ دو, ہم مل کے لڑیں گے ہمارے دونوں کے مسائل. ہمارے دلت بھائیوں سے بولنا چاہوں گا کہ آپ آؤ, ہم آپ کے ساتھ ٹھہرنے کو تیار ہیں, ہم مل کے لڑیں گے. ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 70% ہیں, 30% ہم پر حکومت نہیں کر سکتے, 70% حکومت کرنا ہے یہاں پر. مائنارٹیز کرسچین بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ آؤ, آپ ہم سب مل کے آج ایک نئے تاریخ کا آغاز کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہی اپر کاسٹ, وہی فارورڈ کاسٹ, یہ تمام کے تمام بڑے بڑے لوگ ہمارا ایکسپلائٹیشن کرتے رہیں گے. آخر کیا بات ہے مجھے بتاؤ آپ کہ ہمارے صفوں سے غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا, ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی نوکریاں, کیوں نہیں ہم کو ہمارا حق ملتا, کیوں نہیں ہم کو ڈگری کالج ہمارے لیے کھولتے. یاد رکھو نوجوانوں, یہ اس لیے ہو رہا کہ تم پولیٹیکل پاور تمہارے پاس نہیں ہے. جس دن آپ کے پاس پولیٹیکل پاور آ جائیں گا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, کوئی آپ کی جو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا بات ہے, آخر کیا بات ہے. لوگ ایم آئی ایم پارٹی کو کمیونل پارٹی بولتے. میں ان سے ایک ہی کوسچن کر رہا ہوں, میرے اس کوسچن کا جواب دے دو کہ ہمارے یہاں سے پڑوس میں کرناٹکا کا اسٹیٹ ہے, یہ آندھرا پردیش ہے, بازو مہاراشٹرا ہے, یہ تینوں اسٹیٹ کو ملا لو آپ, 115 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں, 115 لوک سبھا کی سیٹیں. ایم آئی ایم پارٹی کو کمیونل بولتے, ایم آئی ایم پارٹی کو فرقہ پرست بولتے, ایم آئی ایم پارٹی بولتے خالی غریب مسلمانوں کی بات کرتی. ٹھیک ہے, تمہارا الزام صحیح ہے, میں کمیونل ہوں, میں فرقہ پرست ہوں, میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, مگر میرا سوال ان تمام سیکولر پارٹیوں سے ہے. میرے بھائی, 115 لوک سبھا کی سیٹوں میں کتنے مسلم مائنارٹی کو آپ نے کامیاب کیا؟ مہاراشٹرا میں کانگریس این سی پی نے کسی کو کامیاب نہیں کیا, کرناٹکا میں کانگریس اور جے ڈی ایس نے کسی کو کامیاب نہیں کیا. 115 لوک سبھا کی سیٹوں میں خالی ایک ایم پی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا, خالی ایک ایم پی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا. کیوں نہیں کرنول سے ٹکٹ دیتے, کیوں نہیں نندیال سے ٹکٹ دیتے, کیوں نہیں اننت پور سے دیتے, کیوں نہیں ہندو پور سے دیتے؟
کیوں نہیں دیتے آپ ٹکٹ ہم کو کامیاب کرو؟ ہم کمیونل ہے تو آپ تو سیکولر ہے نا, آپ جتا کے بتاؤ ہمارے کو, آپ جتا کے بتاؤ ہمارے کو, مگر نہیں دیتے. آپ ہم کو بولتے ہم کمیونل ہیں. 2006 میں زیڈ پی ٹی سی کا الیکشن ہوا. کرنول میں کتنے زیڈ پی ٹی سی کے سیٹیں ہیں؟ 53. 53 میں کتنے جیتے؟ ایک جیتے. یہ کمیونلزم نہیں ہے, یہ افریقہ پرستی ہے, سیکولرزم بتاؤ مجھے. 53 زیڈ پی ٹی سی کے سیٹیں ہیں, ایک آدمی جیتتا. آپ ایم آئی ایم پارٹی کو بولتے کمیونل ہیں. ہم کمیونل نہیں ہیں, ہم کمیونل نہیں ہیں, ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں. مگر ہم کیا بول رہے کہ دلت ہے, ٹرائبل ہے, مسلم ہے, کرسچین ہے, بیکورڈ کلاس سے آؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ یہ دیکھو ایم پی ٹی سی کے آپ کے پورے کرنول ڈسٹرکٹ میں 777 سیٹیں. کتنے سیٹیں ہیں؟ 777. کتنے جیتے بھائی؟ 50 جیتے خالی, 50 لوگ جیتے ہمیں. یہ کیا, یہ کمیونلزم نہیں ہے, یہ سیکولرزم ہے کیا؟ آپ جیتنا, ہم آپ کو ووٹ ڈالنا, آپ کو کامیاب کرنا, آپ کو منسٹر بنانا, آپ کو چیف منسٹر بنانا, آپ کو ایم پی بنانا, آپ موٹے ہونا, آپ کے پیٹ میں گوشت جانا, آپ کے کپڑے آنا, اور ہم بھکاری بن کے ٹھہرنا. کیا یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ یہ تمہارے کو ووٹ ڈالنا, تمہارے بیٹے کو ووٹ ڈالنا, تمہارے داماد کو ووٹ ڈالنا, تمہارے سسرے کو ووٹ ڈالنا, سب کو ڈالنا. پھر ہمارا کیا کرنا؟ ہمارے کو کون پوچھتا؟ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, میرے بچے کو نوکری نہیں ہے, میرے پاس اسکول نہیں ہے, میرے کو پولیس کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا. اگر گڑبڑ ہوئی تو ایک کی جگہ 10 بچے پکڑے جاتے, جب کوئی نہیں ہوتا. مگر الیکشن آ گیا تو سب آ رہے, دنڈم دنڈم دنڈم. یہ کیا بات ہے بولو آپ؟ یہ بات ہے ان کو پسند نہیں آتی, اسی لیے ہم کو روکنے کی بات کر رہے. انہوں نہیں آنا دونی کو, انہوں کرنول کو نہیں آنا. ارے ہم ہندوستان میرا ہے, ہندوستان میرا ہے. یہاں پر اگر کوئی عالم دین ہے تو میری بات سے متفق ہوں گے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں سے دنیا میں آئے تو کہاں پہ آئے؟ انہوں کہاں پہ آئے؟ تو ہندوستان میں آئے تو میرے باپ کا ملک ہوا نہیں ہوا؟ ہمارے ڈیڈی کا ملک ہوا نہیں ہوا؟ پھر جب باپ کا ملک ہے تو پھر ہمارے کو کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہمارے کو ہمارا حق نہیں ملے گا؟ کیا ہمارے کو ہمارا رائٹ نہیں ملے گا؟ کیا بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی؟ کیا گورنمنٹ میں گھر نہیں ملیں گا؟ کیا اردو میں ہمارے کو انصاف نہیں کریں گے؟ یہ سب چیز اگر ہونا تو پولیٹیکل طاقت بنو, فورس بنو, اپنے لوگوں کو کامیاب کرو. بلدیہ کے الیکشن میں, کل اسمبلی کا الیکشن آئیں گا, اپنے بھائی کو ووٹ ڈالو. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. لڑنا ہمارا کام ہے, جستجو کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی دینا اس کا کام ہے. مگر ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, اور کوشش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم جو لوگ کانگریس پارٹی اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیے, اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیے, کوئی بات نہیں میرے بھائی, کوئی بات نہیں. تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ تمہارا میرا رشتہ خون کا نہیں ہے, تمہارا میرا رشتہ وہ اللہ کا بنا ہوا رشتہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی, کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. وہ اس کو پروردگار اپنے اس سے بنا چکا ہے, وہ بن چکا ہے, وہ کوئی نہیں توڑ سکتا تمہارے ہمارے رشتے کو. لوگ سمجھ رہے ایسا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ حیدرآباد کو آؤ, کسی کی ماں نہیں جانی تمہارے حیدرآباد میں روکنے سے. ہم پورے حیدرآباد کو, ہم تمہارے واسطے حیدرآباد میں ٹھہر کے لڑ رہے. میں حیدرآباد میں کھڑے ہو کر بولا کہ سیما آندھرا کے لوگ حیدرآباد نہیں چھوڑنا, حیدرآباد میں ٹھہرو. اگر کوئی تمہارے کو ڈرا رہا تو ایم آئی ایم کا فلیگ لگا دو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. کہاں گئے چندرا بابو نائیڈو؟ کہاں گئے چندرا بابو نائیڈو؟ بڑا تیلگو بڈا, تیلگو بڈا, تیلگو بڈا,
تائید کرے, توڑنے کی تائید کرے. میں آپ سے بول رہا ہوں, مجلس پارٹی کیا بولی؟ مجلس پارٹی کیا بولی؟ آج ہم شروع سے بول رہے ہیں کہ نہیں, ہم توڑنے کے خلاف نہیں ہیں, مگر اگر توڑیں گے تو حیدرآباد پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی لیے بول رہے حیدرآباد کو آؤ, حیدرآباد کو آرام سے آؤ. ایم پارٹی آپ کے واسطے تیار ہے خدمت کرنے کو. مگر میرے بھائی, اب یہ کیا ہو رہا ہے بتاؤ میرے کو آپ, کیا آپ تو اسٹیٹ ڈیوائیڈ کر دیے, اور چندرا بابو نائیڈو نہیں بول کے دو آنکھ کی پالیسی, وہاں ایک بات یہاں ایک بات. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی کہ کیا تیلگو دیسم پارٹی نریندر مودی سے ہاتھ ملا لی؟ تیلگو دیسم پارٹی, کمیونل پارٹی, میں نے بولا پبلک بول رہی, مگر ہم پوچھنا چاہتے تیلگو دیسم سے, یہ کون سی پالیٹکس ہے میرے کو بتاؤ آپ؟ کانگریس کے پورے لیڈر تیلگو دیسم میں چلے جا رہے, وہ کانگریس کا کھنڈوا اتار کے پیلا شرٹ پہن لے رہے, ہم تیلگو دیسم میں جا رہے. کل تک ہاتھ پہ ووٹ مانگنے والے سائیکل پہ بیٹھ جا رہے جا کے. ارے یہ سائیکل پرانی ہو گئی, اس کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے, اس کا فارک بینڈ ہو گیا, اس کی چین بار بار نکل جا رہی. اب پتنگ کا زمانہ ہے, پتنگ پلانا, پتنگ کا زمانہ ہے, پتنگ کو پلانا. ہوا ہماری ہے, ہوا میں پتنگ پلانا. اب تیلگو دیسم بی جے پی سے الائنس کر رہی, ارے بابو تمہارے کو کیا ہو گیا؟ تم 10 سال پاور کے باہر تھے, 2004 میں ہار گئے, 2009 میں ہار گئے, 2004 میں 2003-4 میں ایم ایل اے تھا, راجشیکھر ریڈی لیڈر اپوزیشن تھے, اور اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر نائیڈو کو بولا تھا, چیف منسٹر تھے انہوں, آپ یاد رکھو آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل یہاں بیٹھیں گے اور راجشیکھر ریڈی وہاں بیٹھیں گے. اور وہ اللہ کے کرم سے ویسے ہی ہوا. اب پھر انہوں جا کے نریندر مودی سے الائنس کر رہے, بی جے پی سے الائنس کر رہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے, ہمارے ملک کو بچانے کا ہے, ہمارے ملک کو سیکولر رکھنے کا ہے, ہمارے ملک کو مضبوط بنانے کا ہے. جو آدمی گجرات کا چیف منسٹر, جو ہے بی جے پی کا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ, 2002 میں کیا ہوا, وہ چیف منسٹر تھا اور گجرات میں احمد آباد کی سرزمین کو معصوم ہندوستانیوں کے خون سے لال کیا گیا. احمد آباد میں گھر جلتے رہے, مودی کچھ نہیں کیا. احمد آباد میں, گجرات میں بچیاں بیوہ ہوئی, حکومت ان کے بچاؤ میں کچھ نہیں کر سکی. آج میں تیلگو دیسم والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ٹی جی وینکٹیش اور پرتاپ ریڈی سے بولنا چاہ رہا ہوں, یہاں کے ایم ایل اے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا تم سمجھتے کہ ہم بھول گئے 2002 کو؟ ہم 2002 کو نہیں بھولے, ہم 2002 کو نہیں بولے. آپ تیلگو دیسم میں جائیں گے, آپ بھول جاؤ آپ کو ووٹ کیا, ہم تو آپ کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف ہرائیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تیلگو دیسم اور بی جے پی کو تو اس کو نابود کر دے, ختم کر دے. یہ ہمارے سے ہاتھ ملا دے. 2009 میں آ کے ووٹ لیے تھے تیلگو دیسم والے, نہیں توبہ کرے نائیڈو صاحب, میں نہیں گاؤں گا بی جے پی کو. اب ہلو بول رہے, ہلو ٹیلی فون پہ بول رہا, پیپر میں آیا ٹیلی فون کر کے بول رہے تیلگو دیسم کے ورکروں کو کہ بی جے پی سے بات کرو. بی جے پی, ارے بی جے پی کیا, بی جے پی کدھر کی بی جے پی, کہاں کی بی جے پی؟ یہ موزی کی بات کر رہے. میرا چیلنج آج بھی برقرار ہے, نریندر مودی کو میں چیلنج کیا, آج بھی کہہ رہا ہوں, لڑنا ہے تو حیدرآباد آ کے لڑو ہمارے خلاف, ہم بتائیں گے
सेकुलरिज्म, डेवलपमेंट की बात करते, कहाँ की डेवलपमेंट की बात करते, सीमा आंध्रा को डेवलपमेंट की बात करते, रायलसीमा की डेवलपमेंट की बात करते। मजलिस पार्टी में आपको बता रहा हूं, मैं श्री कृष्णा कमीशन कमेटी के पास गया था, जाके बोला अगर आंध्रा को तोड़ना है तो कर्नूल अनंतपुर को मिलाओ। मैं बोला था ये बात, कर्नूल अनंतपुर को मिलाओ। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली मेरे, क्या कांग्रेस बोली, क्या वाईएसआर बोले, क्या तेलुगु देशम बोले, कोई नहीं बोले, सिर्फ एमआईएम पार्टी बोली। क्यों बोली? क्योंकि मैं जानता हूं कि डिवीजन अब हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशान कर्नूल अनंतपुर की आवाम रहेगी, सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का होगा, यहाँ के बच्चों का होगा, पानी का मसला पैदा होगा। मगर ना दिल्ली में बैठने वाले कांग्रेस के लीडर सुने, ना तेलुगु देशम का नायडू सुने, ना साबिका चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सुने, ना जगन मोहन रेड्डी सुने, कोई नहीं सुने। सबको क्या था कि नहीं मैं चीफ मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना। मैं गरीबों की बात कर रहा था, मैं बोल रहा था देखो अनंतपुर कर्नूल के लोग परेशान होंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। कोई मेरी बात नहीं सुना। अल्लाह गवाह है, जब तारीख लिखी जाएंगी तो लोग मजलिस के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। एमआईएम जो बात बोली थी सही बोली थी, एमआईएम जो बात बोली थी सही बोली थी। आप बताइए आप कहां जाएंगे अनंतपुर का? सबसे कम बारिश अनंतपुर में होती, सबसे ज्यादा गरीब अनंतपुर में, तो कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं। कर्नूल में परेशानी होगी, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा, कैसा जाएंगे आप बताइए मेरे को। मैं पुकार पुकार के थक गया, अरे मिलाओ जी, दो को तो मिलाओ कम से कम, मिलाओ, तोड़ो न को, तोड़ो मत, मगर जब तोड़ रहे तो दो को तो मिलाओ कम से कम। तो मेरे खिलाफ आवाज उठाए कि तुम रायलसीमा को तोड़ रहे। अरे मैं रायलसीमा को कौन, मैं तो छोटा आदमी हूं भाई, मैं क्यों रायलसीमा को तोड़ने की बात कर रहा हूं? हम क्यों तोड़ने की बात कर रहे? हम तो ये गरीब आवाम की बात कर रहे थे कि इनका क्या होगा। ये कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मगर क्या गरीब की गरीबी का खात्मा होगा? क्या किसी का पेट भरेंगे? हमारे वोटों से तो तुम्हारे घर बन जाएंगे, हमारे वोटों से तुम्हारे पेट में, तुम्हारे जेब में पैसे आ जाएंगे। रोड का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम लेके जाएंगे, इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम लेके जाएंगे। अरे गरीब दलित मुसलमान कहाँ जाएगा मेरे भाई, कहाँ जाएगा बोलो आप? ये बातें इनको पसंद नहीं आती। अब तेलुगु देशम बीजेपी का अलायंस, अब किरण कुमार रेड्डी भी नई पार्टी बना रहे थे। मीटिंग प्रोग्राम कवरेजिंग करूं इलेक्शन का। क्या बात, मैं चप्पल निशाने का उनका चप्पल। चीफ मिनिस्टर थे तो मुक्का दिखाने का था, मुक्का नहीं दिखाए, अब चप्पल दिखाते। क्या फायदा चप्पल दिखा के, चप्पल दिखाएंगे कहते हैं। अरे आप चीफ मिनिस्टर थे, रोक देना था, कुछ तो करना था, मगर नहीं। अब मैं ऐसा चप्पल बनाऊंगा, क्या चप्पल बनाएंगे भाई? गरीब की चप्पल घस गई, ये गरीब जो चप्पल पहन के फिरता है इसकी चप्पल घस गई, हमारे को बैंक से लोन नहीं मिलता, हमारी चप्पल घस गई, हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। मगर आज सब लोग आ रहे, सब लोग बोल रहे रोटी सेको, सब लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आपसे मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, आपकी आवाज को मजबूत करो। सब लोगों की एक एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ये सब बड़े लोगों की पार्टी है। मेरे भाई, ये गरीबों की पार्टी है मजलिस पार्टी, ये गयूर नौजवानों की पार्टी है मजलिस पार्टी, ये दिल वालों की पार्टी है मजलिस पार्टी, ये जज्बाती नौजवानों की पार्टी है जो उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एमआईएम पार्टी का साथ दो, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करो। 30 मार्च को पोलिंग का दिन है, आप अपने अपने पूरे घर वालों को लेकर जाओ पोलिंग बूथ को, अपने वोट का इस्तेमाल करो।
तेलुगु देशम, बीजेपी, ये अब तो कांग्रेस गई, जब तो बैठी भी है नहीं मैदान में, कहीं पर भी नहीं है बेचारे। छोटो हट दो, दूर हट, उधर अब जाके रेस्ट में है, बोल रहे रेस्ट कर रहे, रेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए रेस्ट में चले जाएंगे आप। तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से अलायंस कर रही। अब मेरे को नहीं मालूम वाईएसआर का क्या प्रोग्राम है, उनको भी बोलना चाहिए कि पावर में आने के बाद हम बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। ऐलान कर दो आप। मुझे अफसोस होता है, लोग बोलते कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर का डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है? गुजरात में भी 9% माइनॉरिटीज, आंध्रा में भी 9% माइनॉरिटीज, यहां पर रिजर्वेशन मिला हमारे को। रिजर्वेशन कैसा मिला? एमआईएम पार्टी 1974 में पहला बैकवर्ड क्लास या 70s में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, तो सबसे पहले एमआईएम पार्टी जाके बोली कि मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1970s में बोले। 2004 में राजशेखर रेड्डी साहब हमारे मरहूम लीडर सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के पास आके मिले, बोले सालार साहब सपोर्ट करना। तो सालार साहब बोले एक ही शर्त पे कि गरीब लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन मिला। गुजरात में मिल रहा रिजर्वेशन। चंद्रबाबू नायडू बोलो ना आप मोदी को, गुजरात में रिजर्वेशन दो बोल के, तो कुछ नहीं बोल सकते। इनको अपना रिजर्वेशन बचाने का, अपनी सीट बचाने का है, अपना पोस्ट बचाने का है। मेरे भाई, आज हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म है या जो भी है, हमको ये देखना है कि कैसे हम रोक सकते। और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आकर बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, आप उनसे पूछो कि हमारे लिए क्या करेंगे आप, हमारे लिए क्या करने वाले हैं, हमारा डेवलपमेंट में क्या हिस्सा रहने वाला है। ये तमाम चीजों के लिए मेरे दोस्तों, आपको अपने आवाज को, अपने लोगों को कामयाब करना है। आज यदोनी के बल्दिया के इलेक्शन में मजलिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा, जिसमें हमारे दलित भाई भी है, हमारे क्रिश्चियन भाई भी है, हम सब साथ हैं। हमको सब साथ रहकर आगे बढ़ना है। और मेरे को आके मिले कि हमारे एक तरकारी का काम करने वाले सादिक बादशाह का कत्ल हुआ, सादिक बादशाह का मर्डर हुआ। मैं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद जाकर पुलिस के आला अहदेदारों से रिप्रेजेंटेशन करूंगा। हाँ, जीलान बादशाह का मर्डर हुआ। मैं इंशाअल्लाह ताला पुलिस के सीनियर ऑफिसर से जाकर पर्सनली मिलकर रिप्रेजेंट करूंगा कि इसकी सही इंक्वायरी कराई जाए, मालूम हो कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या वजह है, ये सब चीजों पर हमको गौर करना है। मेरे भाई, अपने इत्तेहाद का सबूत दो, अपने शऊर का सबूत दो, अपनी जमात को मजबूत करो आप। आज मैं जहां कहीं भी जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, बंबई जाता हूं, महाराष्ट्र, हर जगह बोलते कि आओ एमआईएम पार्टी बनाओ, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखो, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, नाम की सेकुलर, मगर मुजफ्फरनगर में खून की होलियां खेली गई, मुजफ्फरनगर में फसाद हो गया, राइट्स हो गया। हर जगह हम जाते, महाराष्ट्र में जाना चाहते बंबई को, तो वहां कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं, ओवैसी को अलाउ नहीं करना, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आना, कोई नहीं आना। अरे नरेंद्र मोदी जा सकता, असदुद्दीन ओवैसी नहीं जा सकता? ये कौन सा कानून है बताइए आप? हम कहां कहीं में उत्तर प्रदेश जाना चाह रहे आजमगढ़ को, नहीं आप लोग को आओ, आप आए तो बहुत लोग आते, हजारों की तादाद में आते। अगर लोग आते, अगर आप इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जमा हुए, मेरे भाई, आप एक आवाज में बोलो कि आपको कोई बिरयानी की पैकेट दिए तो आए, आप कहीं को आए? आप इसलिए आए कि आपको कौम का दर्द है, आप इसलिए आए कि आप अपनी आवाज को मजबूत करना चाहते, आप इसलिए आए कि आप बताना चाहते तमाम पार्टियों को कि अदोनी के हम लोग यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं, और एमआईएम पार्टी हमारी पार्टी है, बताना चाहते हैं आप।
दूसरे पार्टियां क्या करते, गाड़ियां भी जाते, एक बिरयानी की पैकेट एक दूसरी पैकेट खुलवाना, ये हमारा मामला है, इनको पसंद नहीं आता, ये खाली बोले तो इतना आगे। मैं इन तमाम आप लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि 30 मार्च के दिन जाइए अपने घर से तमाम लोगों को सुबह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़िए और पूरे अपनी फैमिली को लेकर पोलिंग बूथ को जाइए। जहां पतंग का निशान दिखा वहां बटन दबाइए, वहां बटन दबाइए और बटन दबाने के बाद अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारी पार्टी को कामयाब कर दे, कि अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर दे। और मेरे को अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि जरूर परवरदिगार हम तमाम की दुआओं को, हम तमाम की मेहनतों को रायगा नहीं जाने देगा। ये आज हमने अपने मयम पार्टी के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इनकी सरपरस्ती करो, आप इनके सर पे हाथ रखो, आप हमारे बड़े हैं, आप बताओ इनको गलत काम कर रहे तो सही काम करना सिखाओ इनको। मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे भाई तुम मेरे बाजू ठहर जाओ, तुम हमारे साथ ठहर जाओ, हम हर चीज कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप साथ ठहरो, आप अपने पार्टी के लोगों का साथ दो। बहुत हो चुका मेरे भाई, कोई पार्टी हमारा साथ नहीं देती। मेरे दलित भाइयों, मेरे बैकवर्ड क्लास के मेरे भाइयों, आओ आज एमआईएम पार्टी का साथ दो। आपने 50 साल कांग्रेस का साथ दिया तो कभी तेलुगु देशम का साथ दिया, क्या मिला आपको? एक मर्तबा अगर 70% जमा हो जाएंगे तो यकीनन हम कुछ कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं हदोनी आया हूं, बार बार आऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे भाई, हम हैदराबाद में हैं या कहां पर भी हैं, आपका हमारा रिश्ता कैसा रिश्ता है? आपका हमारा रिश्ता वो परवरदिगार का बनाया हुआ रिश्ता, याद रखो, जो दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला तोड़ नहीं सकेगी। हम जहां कहीं भी रहेंगे, अगर अदोनी में तुम्हारे आंख में आंसू आएगा तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी को जरूरी है कि तुम्हारे आंख के आंसू को मैं अपने सीने में तकलीफ उसकी महसूस करूं। अगर तुम्हारे हाथ को तकलीफ होगी तो जरूरी है कि मेरे हाथ में भी तकलीफ हो, क्योंकि ये तकाजा है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत का तकाजा है कि ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि तुम रोते रहो और मैं हैदराबाद में सुकून से बैठा रहूं। इंशाअल्लाह ताला मेरे दोनी के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम बहुत रो चुके, अब हम रोने वाले नहीं हैं, अब हम दूसरों को रुलाएंगे। हम बहुत आंखों में आंसू डालिए, अब कांग्रेस पार्टी रोएगी, तेलुगु देशम रोएगी, बीजेपी रोएगी, तो कोई हमको सताएगा वो रोएगा अब इंशाअल्लाह ताला। अब हमको अपना हक लेना है, आओ आगे बढ़ो और मजलिस पार्टी को कामयाब करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है हमने हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये हमारा जज्बा है, ये हमारा जुनून है, ये हमारा मकसद है। आज आप लोगों के दरमियान में हो तो आदिलाबाद के इस जेल से छूटकर हैदराबाद को गया तो हैदराबाद से पहली मर्तबा बाहर निकला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद को ही आया हूं। और इस आदिलाबाद को क्यों आया हूं?
वजह क्या है आने की? इसलिए आया हूं कि 40 दिन तक आपकी सरजमीन में रहा, आपके दरमियान में रहा। मैं हैदराबाद से दूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से दूर जरूर था, लेकिन आदिलाबाद के मुसलमानों की हिफाजत में था। आपकी मोहब्बत के दरमियान था, आपके दुआओं के दरमियान था, और आपके साथ ही था। और आपकी फिजाओं में गूंजने वाली हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज उस जेल की काल कोठरी में भी मेरे कानों तक आती थी। वो आपकी और मेरी ईमान की आवाज थी। और हमने 40 दिन के इस जेल की सोहबत में आदिलाबाद के हर उस शख्स का ममनून हो, मशकूर हो कि जेल में था तो कोई अखबारात पहुंचाता था, तो कोई मिलने के लिए आते थे, कोई मेरे कपड़े या कुछ लेकर आके देते थे, या बहरहाल मेरी दवाएं, कई चीजें मजलिस के कारकुन, मजलिस के सदर और मजलिस के अराकीन के साथ साथ जभी भी जेल से निकलता, कभी संगारेड्डी जाता, कभी निजामाबाद, कभी निर्मल, तो रास्ते में खड़ा मेरा मुसलमान भाई अपने सलाम के जरिए मेरे हिम्मत को और बुलंद करता। मैं तो पुलिस की हिसार में था, पुलिस की नजर में था, नजरबंद था, लेकिन काफिला जब जाता था तो मेरा एक ईमान वाला बेइख्तियार अपने हाथ को उठाकर सलामती की सलाम भेजता। कोई समझे या न समझे, दूर खड़े रहकर सलाम करता था, मुस्कुराता था। वो मेरे अज़्म, मेरे इरादे, मेरे हिम्मत में और 1000 गुना इजाफा करता था। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे ये लोग तो समझे थे कि अकबर ओवैसी को जेल में डाल देंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन जब भी ये तोड़ना चाहते थे तो आपका सलाम मुझे जोड़ता था। जब भी ये कमजोर करना चाहते थे तो आपकी मुस्कुराहट एक नई हिम्मत दे देती थी। इसलिए वो जो मोहब्बत है, जो रिश्ता है, वो रिश्ता मोहब्बत मुझे आपके दरमियान में फिर से खींच कर लाया। और वही रिश्ता, वही एहसान है आपका, जिसको अदा करना न सिर्फ मेरा ईमानी फर्ज है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह मेरे जिंदगी का मकसद भी है। कि आज हमको यह बताना है कि हमारे अज़्म जेलों में रहने से टूटते नहीं हैं और बुलंद हो जाते हैं। हमारे इरादे कमजोर नहीं होते, हमारे इरादे और मजबूत होते हैं। आज मैं उन सारे बातों में, वाकयात में जाना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी पर जितनी भी ज्यादतियां, नाइंसाफियां या जुल्म हुआ, वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? इसलिए हुआ कि मैं आपकी आवाज बन के इनको ललकारता हूं। मैं आपका गुस्सा अपनी जबान पर लाता हूं, आपके जुनून को अपना जुनून बनाता हूं, आपको हक दिलाने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगाने तैयार हूं। अरे यही इनको बुरा दिखता है। आप बताओ मेरे भाई, क्या कुछ दौलत की कमी है, कोई इज्जत की कमी है, कुछ शोहरत की कमी है, किस चीज की कमी है? फिर क्यों 40 दिन अपनी औलाद को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपनी
सुकून की जिंदगी को छोड़कर, आराम की जिंदगी को छोड़कर जेल में थे तो किसके लिए थे? अपनी जात के लिए नहीं, अपनी आल के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, उनके व्यवहार के लिए, आपके लिए, यह बताने के लिए दुनिया को यह बताने के लिए कि दुनिया हमको गूंगा या कमजोर ना समझे। दुनिया को हमने बता दिया कि हलक में हम भी जबान रखते हैं। हमने दुनिया को बता दिया कि बोलना तुमको नहीं आता, सिर्फ हमको भी आता है। हमने बताया तो दुनिया हैरत करने लगी। अरे आज ये समझ रहे थे कि हमारा काम खाली सुनना है, वो जो चाहे बोले हम सुने। हमने बताया नहीं बाबा, वो दौड़ गया, हम भी सुना सकते हैं। और जब हम सुनाने लगेंगे तो फिर तुमको भी सुनना पड़ेगा। भाई, आज लोग ये समझ रहे थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में चला गया, डाल दिए, मजलिस खत्म हो गई, अकबर साहब तकरीर नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे आज मैं बहुत बोलना चाहता था, थोड़ा अगर डिसिप्लिन होता तो शायद बहुत कुछ कहते। इंशाअल्लाह फिर जब आएंगे बोलेंगे, अब जितना वक्त है उसमें भी बोलकर जाएंगे। आज आप से यही कहूंगा कि आज आप देखिए कि आज आंध्र प्रदेश को तोड़कर रियासत तेलंगाना बनाने का ऐलान किया गया। तेलंगाना बनेगा। तेलंगाना का मुतालबा क्यों हुआ? तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी, उनके नौकरियां उनसे छीन ली गई, पानी नहीं दिया गया, जमीन बंजर हो गई, रोजगार नहीं दिया गया। तेलंगाना के साथ जिंदगी के हर शोबे हयात में नाइंसाफी हुई, इसलिए तेलंगाना का मुतालबा हुआ। आंध्रा वालों ने तेलंगाना का हक छीना, पानी छीना, नौकरियां छीनी, रोजगार छीना, और इसलिए तेलंगाना वाले कहने लगे कि हमको तेलंगाना देना चाहिए। अब सवाल यह है कि तेलंगाना मिल गया तो क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? तेलंगाना मिल गया तो क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? तेलंगाना मिल गया तो सारी बंजर जमीन सैराब हो जाएगी? सवाल यह है कि तेलंगाना मिल गया तो क्या हर एक के घर में खुशहाली आ जाएगी? अरे आज तेलंगाना जो मिला, यह नामुकम्मल तेलंगाना मिला। मुझे नहीं मालूम कि देने वालों ने ऐसा तेलंगाना क्यों दिया, लेने वालों ने ऐसा तेलंगाना क्यों लिया। सुनिए, मैं ये बात क्यों कहता हूं। हाई कोर्ट हैदराबाद में है, नया हाई कोर्ट बनेगा, कहां? आंध्रा में बनेगा, और यहां का कोर्ट यहां रह जाएगा। आंध्रा में हाई कोर्ट बनेगा तो आंध्रा के जज आएंगे, आंध्रा के वकील आएंगे, आंध्रा के लोग आएंगे, पूरे आंध्रा वालों को और नौकरियां। यहां जो आंध्रा के लोग हैं, तेलंगाना के लोगों के ओहदों पर बैठे हैदराबाद के हाई कोर्ट में, क्या वो जाएंगे? क्या वो जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं तेलंगाना लेने वालों से, क्या हैदराबाद के हाई कोर्ट में बैठे आंध्रा वालों को भी क्या आंध्रा के कोर्ट में भेजेंगे? क्या तेलंगाना के बिल में है? नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें आईएएस, आईपीएस और दूसरे ग्रेड 1, ग्रेड 2 के लोग आते हैं, क्या है? नहीं है। एपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा, वो आंध्रा का हो जाएगा। तेलंगाना के वास्ते पब्लिक सर्विस कमीशन
बोले नहीं रहेगा, यूपीएससी से रहेगा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। तो फिर तेलंगाना का बच्चा कहां जाएगा? तो इसलिए कहता हूं कि कैसा तेलंगाना लिए। करीमनगर, रामागुंडम में सिंगरेली कॉलोनीज है, कोयला हमारा है, कोयला हमारा है, तेलंगाना का है हमारा, मतलब तेलंगाना को कोयला है, क्या पूरा तेलंगाना को मिलेगा? नहीं मेरे भाई, 50% भी नहीं मिलेगा। जितना भी मिलना है मरकजी हुकूमत की कमेटी फैसला करेगी। क्या बात है? पानी, पानी कितना तेलंगाना को आएगा? तेलंगाना की हुकूमत फैसला करेगी? नहीं, पानी का फैसला भी मरकज की कमेटी करेगी। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल नहीं, आंध्रा का भी कैपिटल। बोलते ना वो दो मुर्गियों में, दो मुल्लाओं में मुर्गी मुर्दार, ये हाल हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, किसके पास? किसके पास है? गवर्नर के पास। तो मैं पूछना चाहता हूं, यह कैसा तेलंगाना है और लेने वाले क्यों लिए? और उनसे कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा, असेंबली में भी कहा हूं कि तेलंगाना की आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी है इस तेलंगाना के लिए। अगर तेलंगाना के लोगों को रोजी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो याद रखो ये तेलंगाना के लोग जो तेलंगाना हासिल करे हैं, यही तेलंगाना के लोग तेलंगाना के लीडरों के गिरेबान के चाह कर देंगे और उनको भी सबक सिखाएंगे अगर इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। आप बताओ, क्या यह बात गलत है मैं जो कह रहा हूं? और भाई तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई बोलते, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी मेरे साथ हुई, मतलब आपके साथ हुई। तख्त किसका लुटा? तख्त किसका लुटा? हमारा लुटा। ताज किसका गया? हमारा गया। जागीर किसकी गई? हमारी गई। इनाम जमीन किसकी गई? हमारी गई। रोजगार किसके छीने गए? हमारे गए। अरे तेलुगु को तो दो दो मिल गए, उर्दू को क्या मिला मैं पूछना चाहता हूं। और आज आप बताइए, तेलंगाना मांग रही तेलंगाना वाले, तेलंगाना दे रही है कांग्रेस, यूपीए, सोनिया, राहुल गांधी। सही है ना मैं कह रहा हूं उसे? मांग रहे वो, दे रहे वो। तेलंगाना निजाम सरकार दे रही। भाई आप हंस रहे हैं, असेंबली में मैं था, जो उठता निजाम को गाली दे रहा, जो उठता है निजाम, जो उठता है निजाम, जो उठता है निजाम। क्या आज तेलंगाना निजाम सरकार दे रहे? खबर में से निकल के तेलंगाना की तश्कील के लिए क्या निजाम सरकार जिम्मेदार है? देने वालों को बोलो हमारा क्या ताल्लुक है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जब हमारा मसला आता है, चाहे इधर वाला हो या उधर वाला हो, जहर इनमें बराबर है। क्यों तेलंगाना वाले नहीं उठे? क्यों टीआरएस वाले नहीं उठे? क्यों कांग्रेस के तेलंगाना के लीडर नहीं उठे? तेलुगु देशम के लोग क्यों नहीं उठे? अरे असेंबली में मेरे भाई, ये तेलुगु देशम कांग्रेस के तेलंगाना के लीडर बोलने लगे कि मुसलमानों ने कत्लेआम किया था तेलंगाना में कहकर। तो फिर हम खामोश बैठना था? अरे जब हम उठकर खड़े रहे, ये चंद्रबाबू नायडू उठ के बोलने लगा, ये तो दीवाना ही हो गया है। मैं उठ के कहने लगा निजाम 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 बोल रहे हैं। अरे निजाम सरकार ये सिरपुर कागज नगर की मिल देने वाले का नाम है। निजाम सरकार निजाम शुगर फैक्ट्री देने वाले का नाम है। निजाम सरकार एमएसके मिल देने वाले का नाम है। निजाम सरकार तालाबे कितने बनाए, और निजाम सरकार हाईकोर्ट आखिर में बोला कि इस असेंबली में जहां बैठे हुए हैं नाशुक्र हो, ये भी निजाम बनाए सो है।
40 मिनट तक निजाम सरकार की तारीख पढ़ दी। चंद्रा बाबू नायडू उठ के बोले निजाम सरकार 200 बरस में नहीं करे जो मैं 9 बरस में कर दिया। बताइए क्या करे? तो बोले मैं हाईटेक सिटी बनाया। निजाम सरकार हैदराबाद को ड्रेन सिस्टम दिए थे, सीवरेज सिस्टम दिए थे। हाईटेक सिटी में सीवरेज के लाइना भी नहीं है, सेप्टिक टैंका है। फिर बोल रहा है ये नासमझ नादान। आप बताइए हम खड़े रहकर ऐवान असेंबली में निजाम के तारीख को बयान करें तो बोलने लगे कि निजाम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने वाला आदमी है। तो मैं पलट के बोला चाइना की जंग के वक्त सोना देने वाले टनों की आलम में हजारों करोड़ रुपया आज की दौर में देने वाले का नाम निजाम था। खामोश बैठ गए। फिर बीजेपी वाले उठे। मैंने बीजेपी वालों से कहा बाबा तिरुपति की मंदिर, श्री सैलम की मंदिर और तुम्हारे तेलंगाना के मनादिर को पैसा देने वाले का नाम भी निजाम था। फिर खामोश बैठ गए। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी रजाकार है, यहां रजाकारों की बात कर रहे का। मैंने कहा देखो भाई वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। फिर बोले नहीं कत्लेआम करे थे। मैंने पलट के कहा अगर वो देशद्रोही तक बोले निजाम को तो मैं आज उनसे असेंबली में सवाल करा उस वक्त कि अगर निजाम देशद्रोही थे तो हिंदुस्तान के मर्द आहिन जिनको ये बोलते हैं, जिनकी बहुत बड़ी मूर्ति गुजरात में मोदी बना रहे हैं, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनको मर्द आहिन बोल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ही। फिर मैंने पूछा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर निजाम को राज प्रमुख क्यों बनाए थे? समझ में नहीं आया। हिंदुस्तान का मर्द आहिन उस वक्त का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू निजाम को गवर्नर बनाते हैं तो क्यों बनाए? देश के द्रोही थे तो? कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कितना इनके दिल में जहर है हमारे लिए, कितनी नफरत है हमारे लिए, कि वो चाहते हैं कि कभी भी मौका मिल जाए तो जहर को उगलो इनके खिलाफ। अरे हमारा क्या लेना देना बताओ आप। लेकिन दर हकीकत ये निजाम को नहीं बोला जा रहा था, ये बोल रहे थे तो मुसलमानों को, और आपको मुझको बोल रहे थे। और तो लानत होती अगर हम खामोश बैठते, तो हम खामोश नहीं बैठे। ऐसा बोले कि पूरी असेंबली सन्नाटे में आ गई थी। देखने वालों ने देखा होगा जब मैं तकरीर करने को खड़े हुआ तो चंद्रा बाबू नायडू भाग गए, किरण कुमार रेड्डी भाग गया, बीजेपी के लीडर भाग गए, कांग्रेस के मिनिस्टर्स चले गए। मैं पलट के देख रहा हूं, एक के बाद एक पूरे जा रहे हैं। बोले बाद में बोले नहीं अकबर भाई, ना हम बैठना चाहते थे ना सुनना चाहते थे, अगर आप बोलने लगे तो फिर हमारा कचरा हो जाता। अरे बताओ आप, ये जिद्दोजहद हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी जात के लिए? नहीं मेरे भाई, हम आपकी शिनाख्त के लिए, आपके वजूद का एहसास दिलाने के लिए आपकी तर्जुमानी करते हैं ऐवानों में। आज आपको भी समझना होगा, आज ये मुल्क बड़ी तेजी से फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे इस दौर में आप पर, हम पर बड़ी जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है कि हम इस फिरका परस्ती के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। आज आप देखिए आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से आरएसएस काम कर रही है।
आरएसएस में मुसलमान रुकन नहीं बन सकता। आरएसएस का नज़्मुल ऐन है तो मुसलमानों को गाली देना, उनको तबाह करना, उनको बर्बाद करना। मुसलमान को रिजर्वेशन बीजेपी आरएसएस खिलाफ, माइनॉरिटी कमीशन बीजेपी आरएसएस उसके खिलाफ, अक़लियतों का बजट बीजेपी आरएसएस उसके खिलाफ तो है, लेकिन अपनी एक शाख बनाते हैं मुसलमानों में इंतशार पैदा करके उनको खरीब लाने के लिए। किसके लिए? इख्तिदार के लिए। क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुल्क का अगर किसी को वजीर आजम बनना है तो मुसलमानों की मदद के बगैर नहीं बन सकता। इसलिए आज बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को राग़िब करने की कोशिश करती। एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि माफी चाहेंगे। कौन सी माफी? किसकी माफी? काहे की माफी? सिर्फ धोखा है। मुसलमानों का अक़लियतों का बजट नहीं होना बोलते, लेकिन आरएसएस में मुसलमानों को तोड़ने के लिए हजारों का बजट है। बताइए ये क्या है? आज गुजरात में जो दरिंदगी का फिसाद हुआ, तबाही बर्बादी हुई, आज कहते हैं कि गुजरात तरक्की पर है, गुजरात आगे बढ़ रहा है। कहीं की तरक्की? कहां की तरक्की? सिर्फ झूठ है। और जो लोग आज ये बात कहते हैं और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का फिगर है या हिंदू राष्ट्र बनाने वाला मर्द आहिन का सानी है, या फिर कहते हैं कि मॉडर्न डेज का सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मैं तो सिर्फ हंसूंगा इस पर, इस वास्ते हंसूंगा। और अगर कोई बीजेपी को वोट देने वाला है, अगर कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, मुझे सुन रहा है, तो मेरा सवाल है, अरे भाई मैं तो कहता हूं कि मैं जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा दिलवाऊंगा और कानूनी लड़ाई को जीत कर इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसी जगह तामीर करूंगा। लेकिन जरा रुकिए। आज ये हिंदू राष्ट्र का मखोटा पहना हुआ ये मोदी किस खेत की मूली, आज ये क्या कह रहा है? मुझे हैरत हुई। आपने भी सुना होगा, इसलिए सवाल है मेरा बीजेपी को वोट देने वालों से। नरेंद्र मोदी कहता है कि देवालय बाद में, पहले शौचालय। मतलब ये शौचालय किसको बोलते नहीं मालूम, शायद मेरे भाइयों को नहीं मालूम। वो हमाम जहां होता ना, वहां जहां जाके फारिग होते, हगने और मूतने जहां जाते, उसको शौचालय बोलते। और ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि पहले शौचालय बाद में देवालय। वाह! तो बीजेपी को वोट देने वाले तुम शौचालय बनाने वाले को वोट देंगे। मेरा भाई तो मुझे वोट देगा, मैं क्या बनाने वाला हूं आपको मालूम। आप बताइए। इस वजह से कहता हूं ये मुल्क का अजीब गरीब है। मौक़िफ़ एक तरफ फेकू है तो एक तरफ पप्पू है। आप बताइए कि तारीख तक सही नहीं बोल सकता। अलेक्जेंडर कहां आया नहीं मालूम, सिकंदर आजम कहां है नहीं मालूम, बस फेंकू है, फेंकते रहना है, बोलना है। अरे आप गौर करो मेरे भाई, आज इस मुल्क में अगर हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा वोट है, वो हमारा ईमान है। और हमको अपने इत्तेहाद के जरिए अपने हक के लिए जद्दोजहद करना होगा। अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को बेबाकी के साथ नुमाइंदगी करने वालों को ऐवानों में भेजना होगा। और अपने ईमान के जरिए अपनी इज्जत, इस्मत, आबरू और मसाजिद और शरीयत की हिफाजत करनी होगी। अगर आज हम
अपने सफों में इत्तेहाद नहीं लाएंगे तो मेरे भाई हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। खुदारा आप लोगों से दरख्वास्त है कि आज मुल्क के हालात को देखते हुए हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अभी बहुत बोलना था, वक्त कम है, लेकिन आप लोगों से बार बार यही दरख्वास्त करूंगा कि याद रखो, अगर सऊदी अरब में अल्लाह ने पेट्रोल की दौलत से हमको नवाजा है, अगर मिस्र में खूबसूरती में मराकश में खूबसूरती से नवाजा है, अगर सोने की दौलत से नवाजा है, ऑयल की दौलत से, पेट्रोल की दौलत से, तो याद रखो हिंदुस्तान में अल्लाह ने हमको पेट्रोल, सोना, सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है और वो दौलत हमारा ओट है। इस ओट को सही इस्तेमाल करो। अगर ये ओट गलत इस्तेमाल होगा तो फिर हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी ऐवान। 50,000 फिसादात के जरिए तो वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अखलियत का बहा। तो आज सवाल ये है कि कौन है जो हमारे हक के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है? कौन है जो आज हमारे बहते हुए खून का हिसाब मांगने को तैयार है? सवाल ये है कि कौन है जो हमारी लुटी हुई इस्मत पर इज्जत की चादर डालेगा? कौन है जो हमारे बस्तियों को जलाने के लिए बढ़ते हुए खदमों को रोकेगा? सवाल है कि कौन है जो मुसलसल नाइंसाफी पर आवाज उठाएगा? तो जब हम नजर डालते हैं तो हमको कई सियासी जमातें नजर आती हैं, लेकिन हर कोई मुसलमान को एक वोट बैंक समझकर उनके वोटों के जरिए इख्तिदार पर आना चाहता है, लेकिन हमारे मसाइल को हल करना नहीं चाहता। और अब जब कभी हमारे दरमियान में आते हैं तो हथेली में जन्नत दिखाते हैं, सुनहरी ख्वाब बताते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब हकीकत में करने का वक्त आता है तो कोई नहीं करता। अगर कोई दावा करता है कि किया है तो सवाल यह है कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही बात कहती है जो आज से कई बरस पहले गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था। आज वही बातें दोहराई जा रही हैं 60 बरस से ज्यादा। आज इस बात को कोई तस्लीम जरूर करता है लेकिन हल करने के लिए तैयार नहीं है। और आज जब हम ये सवाल करते हैं कि कौन है जो हमारे हक के लिए आवाज उठाएगा, कौन है हमारे ऊपर जब जुल्म होता है तो उन जालिमों से मुकाबला करेगा, कौन है जो हमारे बहते हुए खून का हिसाब तलब करेगा, कौन है जो हमारी लुटी हुई इस्मत पर इज्जत की चादर डालेगा, तो हमको कोई नजर नहीं आता है। और अगर आज कोई नजर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो नजर आती है आपके हक के लिए लड़ती है। और आज ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब हक के लिए आवाज उठाती है तो उसको फिरका परस्त जमात कह के बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस मुल्क में यह पैगाम दे रही है कि अब इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यह पैगाम दे रही है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत अपने हक के लिए जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करेगी। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नजर में खटक रही है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि इस जमात को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से इस जमात से वाबस्ता होने वालों की वाबस्तगी को तोड़ा जाए, किस तरीके से इस जमात की क़यादत को कमजोर किया जाए, किस तरीके से इस क़यादत को जेलों में डाल के डराया धमकाया जाए। लेकिन आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे अज़्म, हमारे इरादे, हमारा जुनून और मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद करके उनका हक हासिल करना
उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इंसाफ के लिए आगे बढ़कर जिद्दोजहद करना, यह हमारा नज़्मुल ऐन है और कोई ताकत हमको हमारे जिद्दोजहद से रोक नहीं सकती। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिद्दोजहद करेगी, अपने मसाइल के लिए आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर काम करेगी। आज आपको हमको ये सोचना है कि आज हमारे हक के लिए अगर कोई लड़ रही है तो वह जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम सिर्फ बाजारों, चौराहों या फिर मैदानों में ही तकरीर करते, बल्कि हम आपके हक के लिए ऐवानों को दहला देते हैं, ऐवानों को हिला देते हैं। और ये एक हकीकत है कि दुनिया ने देखा कि आज चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या और कोई दूसरी रियासतें हो, यहां पर भी कई मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुंतखब होते हैं, ऐवानों में जाते हैं, लेकिन ये लोग हमारे मसाइल पर सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर बैठते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन खामोश तमाशाई बनकर ऐवानों में नहीं बैठती, बल्कि आपके मसाइल के लिए जिद्दोजहद करती है। अगर आज मैं आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक कायद, एक रुकन असेंबली की हैसियत से आया हूं, तो जरूर यह बात सही है कि मैं भी यही कहूंगा कि आपको अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करना होगा। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हूं तो हरगिज़ और कतई यह बात नहीं कहूंगा कि जिस तरीके से दूसरे कायदीन कहते हैं, कांग्रेस वाला आया तो कहेगा सबसे अच्छी कांग्रेस, आप कांग्रेस को वोट दो, तेलुगु देशम वाला कहेगा तेलुगु देशम को वोट दो, बीजेपी वाला कहेगा बीजेपी को वोट दो, टीआरएस कहेगी कि उसको वोट दो। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है, यह आपकी जमात है, आपको अपनी जमात को वोट देना होगा। मजलिस सिर्फ मेरी नहीं है, मजलिस आपकी जमात है, और इस जमात को आपने ताकतवर बनाया है। यह जमात आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी, आपकी कोशिशों से इतनी आगे बढ़ी। अगर आपकी इस जमात से वाबस्तगी नहीं होती तो शायद यह जमात तरक्की नहीं करती। आज आपको गौर करना होगा कि हमारी तादाद आज इस मुल्क में कितनी है। कि आज इस मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है मुस्लिम अक़लियत की, लेकिन आज भी मुसलमान अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और मुंतजर है कि हमको हक मिलेगा। आप बताइए कि जब तेलुगु देशम बरसर इख्तियार थी तो अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का बजट आंध्र प्रदेश की रियासत में कितना था? 30 करोड़ चिल्लर था। और आज अक़लियतों का बजट कितना है? 1000 करोड़ से ज्यादा अक़लियतों का बजट है। तो आप बताइए, अक़लियतों के 1000 से ज्यादा बजट को किसकी वजह से मिला, किसकी जिद्दोजहद की वजह से मिला? आप बताएं कि आज अगर 1000 करोड़ का बजट है, उससे बढ़ के है, तो यह मजलिस की कोशिशों, काविशों का नतीजा है, हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज हुआ। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, कहूंगा 10 साल नहीं, 5 साल पहले तक भी मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन कितनी दी जाती थी? 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने असेंबली में इस मसले को उठाया और हम ऐवान असेंबली में इतनी कामयाब नुमाइंदगी व जिद्दोजहद करे कि मुझे याद है कि मैंने अपनी तहरीर में कहा था
کہ राजशेखर रेड्डी साहब, आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के वोटों से आए, कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया इसलिए कांग्रेस इख्तिदार पर आई, लेकिन आपके इख्तिदार पे आने के बाद भी आज मुसलमान के साथ इंसाफ नहीं है। एक बीसी को, एससी को, एसटी को जो स्कॉलरशिप 10,000 रुपये की मिलती है, वही मुसलमान बच्चे को 200 की मिलती है। जिसको 25,000 की है, वो आज वही मुसलमान को 300 की मिलती है। और आज अगर आप समझते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो आपको चाहिए कि मुसलमानों को भी उनके बराबर स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज एससी को, एसटी को और बीसी को जितनी स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बराबर की स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को भी मिल रही है। यह मजलिस की कामयाबी कि आज सालाना 200 करोड़ से जायद सिर्फ एजुकेशन स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को इस रियासत में मिलती है। यह किसकी जिद्दोजहद का नतीजा है कि हम ऐवान असेंबली में बार बार कहते हैं कि मुसलमान तालीम में पीछे है, माशी तौर पे कमजोर है, रोजगार में पीछे है, मुसलमानों के साथ इंसाफ होना है, और अगर इंसाफ होना है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना होगा। और आज इस रियासत में रिजर्वेशन है मुसलमानों को 4% से राहत। तो रिजर्वेशन किसकी वजह से आया, किसकी जिद्दोजहद की वजह से आया? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से आज मुसलमान को इस रियासत में रिजर्वेशन हासिल है रोजगार और तालीम में। यह काम भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया, और इसका नतीजा है कि आज तालीम में, रोजगार में आज हमको मौके मिल रहे हैं। आज एक गरीब बच्चा जो सिर्फ डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था, इंजीनियर बनने की हसरत रखता था, मेरिट रहने के बावजूद भी डॉक्टर व इंजीनियर नहीं बन पाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो मजलिस की जिद्दोजहद के बाद हासिल हुई, एक गरीब मुसलमान डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकता है, इंजीनियर बनने का ख्वाब देख सकता है तो हकीकत में तब्दील कर सकता है। MBA, MCA, लॉ, आर्किटेक्चर, हर कोर्सेज में प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक, फिर उसके बाद PhD तक स्कॉलरशिप है। स्कूल के लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आज जो स्कॉलरशिप हासिल है, यह किसकी जिद्दोजहद का नतीजा है बताइए? आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाब जिद्दोजहद का नतीजा है। आज मुसलमानों को रोजगार के लिए बैंक के जरिए बैंकेबल स्कीम्स को हम देखते हैं, तो आप देखिए कि इस रियासत के हालात ऐसे थे 5 बरस से कि चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी खत्म हुए, उसके बाद रोशैया आए, फिर तेलंगाना तहरीक, तो ऐसे हालात थे कि इन हालात में हर एक को तो उसका हक मिला, लेकिन इन हालात में भी अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो मुसलमानों के साथ हुई। बैंकेबल स्कीम जो थे, जो मार्जिन मनी बैंक को देना था अक़लियतों को खर्च के इजराई में, आज वो अपना टारगेट सारे रियासत में 1% भी हासिल नहीं कर सके, और तेलंगाना में तो 1% से भी कम मुसलमानों को, अक़लियतों को लोन दिया गया बैंक से। तो आप बताइए कि इस हक के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं। असेंबली के तारीख को उठाकर देखिए कि जमीनात तकसीम की गई, कितने लाखों एकड़ जमीन दी गई बेजमीनों को। बताओ इस आदिलाबाद के मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कितने हैं इस मजमे में जिनको 1 एकड़ जमीन हुकूमत की जानिब से मिली है? बताइए। 16 लाख एकड़ जमीन तकसीम हुई। ऐवान असेंबली में मैंने आधा शुमार बताया और कहा कि जमीन दी जाती है तो उसमें भी मुसलमान महरूम, घर बना के दिए जाते हैं तो उसमें भी नहीं। क्या बेघरों में, क्या जिनको घर नहीं है, क्या उनमें मुसलमान नहीं? क्या मुसलमान को घर का हक नहीं? उसके लिए हमने जिद्दोजहद की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब 5 बरस पहले
जितने घर रियासत में दिए गए थे उनमें मुसलमानों को जो घर दिए गए थे उसमें तनासुब 1% था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम उठा के देखते हैं तो तनासुब 11.5% है। लेकिन आज भी अगर आदिलाबाद को हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा कम घर अगर दिए गए मुसलमानों को तो और जिले आदिलाबाद में दिए गए। आज उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो आप बताओ कि कौन है जो आपके लिए आवाज उठाता है? अरे ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जो आपके लिए आवाज उठाती है, आपके हक के लिए। सिर्फ जज्बाती तहरीर करना, नारेबाजी करवाना या आवाम को मुश्तइल करना, उनकी वाहवाही लेना और चले जाना हमारा मकसद नहीं है। अरे हम जिस बेबाकी से मैदानों में खड़े होकर बात करते हैं उससे ज्यादा जुर्रत से ऐवानों में करते हैं। हम में वो हिम्मत है, वो ताकत है कि हम बताते हैं कि आज हमको हक देना होगा। और ये भी एक हकीकत है कि मजलिस के एमएलए 7 हैं ऐवान असेंबली में और पूरे एमएलए 254 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 भारी है 254 पर। ये हमारी ताकत है और हम अपनी इस जिद्दोजहद के जरिए आपके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन आपको हमको यह गौर करना होगा कि आज ये मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये लोग आज जो हमको सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं ये सिर्फ वोटों के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेसलाल करते हैं। आज हमारे लिए अगर कोई जिद्दोजहद करता है तो वह अपना ही करता है, गैर नहीं करता। इस बात को समझना होगा कि आज ये मुल्क तेजी के तरफ, तेजी के साथ फिरका परस्ती की तरफ जा रहा है। आज आप देखते हैं कि सियासी मैदान में कांग्रेस है या फिर दूसरी जमातें हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में बीजेपी तेजी के साथ इख्तिदार को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। और आप बताइए कि 5 बरस के इस वक्त में अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, उनको हक नहीं मिला और उनके इस्मत आबरू की हिफाजत नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये मुल्क में करप्शन अपने उरूज को पहुंच गया, महंगाई आसमान को छूने लगी और ये मुल्क की सरहदें भी आज महफूज नहीं रहने लगी। आप बताइए कि 2G स्कैम हुआ, आप बताइए कोल स्कैम हुआ, कौन से स्कैम हुए? भरते गए पेट अपना, कमाते गए और इस मुल्क को बेचते गए ये लोग। हेलीकॉप्टर मंगाए, उसमें डिफेंस में, 2G में, कोल में, हर एक चीज में हजारों करोड़ रुपया खा गए, हजम कर लिए, डकार तक नहीं मारे। आज अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि चाइना की हमारी सरहद, आज चाइना अंदर घुस के आ जा रही है। हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। मैप बनाते हैं, कुछ नहीं करते। उधर पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमत नाकाम उसमें। अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि बर्मा एक छोटा सा मुल्क, वो भी हिंदुस्तान की सरहद में आ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सक रहे। बताओ, आप बताइए कि कहां जा रहा है मुल्क। और अफसोस तो इस बात पे होता है कि करप्शन है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आज इस मुल्क के सामने, इस मुल्क की सेकुलरिज्म और इस मुल्क के अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए, उनके दुख दर्द में, उनके मसाइल को हल करने के लिए आज कोई जमात, कोई क़यादत दिखाई नहीं देती। आप बताइए, आप बताइए, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी
को क्या कहते हैं, राहुल गांधी को क्या, मुझे देखकर हंसी आती है कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर कहा जाता है, नाम दिया गया है कि एक पप्पू है दूसरा फेंकू है। तो आप बताओ, इनको फिक्र है हमारी, नजर है हम पे, तवज्जो हमारे पे है, लेकिन हमारी तवज्जो इस मुल्क की सालमियत पर है, इस मुल्क से करप्शन के खात्मे पर है। और अफसोस होता है कि एक तरफ फेंकू है, एक तरफ पप्पू है। तो बताओ कौन इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा, कौन इस मुल्क को जो उम्मीद है वो देगा। आज हमको और आपको ये गौर करना होगा कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद कर रही है, और हर जमात आपके वोटों को इस्तेमाल करना चाहती है, हर जमात आपके वोट के जरिए इख्तिदार पर आना चाहती है। लेकिन हमको यह सोचना है कि अपने नुमाइंदों के कामयाबी के साथ साथ हमको इस मुल्क में बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को भी रोकना होगा। हमको इस मुल्क में नरेंद्र मोदी के ख्वाब को भी चुकनाचूर करना होगा, और ये चीज हम सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए कर सकते हैं। अगर आपकी सफ में इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे भाई याद रखो, एक चीज याद रखो, माफ करना, हमारा ये हाल है कि हम जोश में आ जाते हैं तो होश को भुला देते हैं। अगर होश में रहे तो जोश नदारद हो जाता है। आज अगर हमको जिंदगी में कामयाबियां हासिल करनी है तो याद रखो, सिर्फ जोश से कामयाबी नहीं मिलती, सिर्फ होश से कामयाबी नहीं मिलती, जोश और होश के साथ कामयाबी मिलती है। जोश और होश को सही सिमत में ले जाकर कामयाब करना होगा। मैं इन नारे लगाने वालों से कहूंगा कि नारे ना लगाएं, नारे ना लगाएं। मैं आपसे कहने को आया हूं, मुझे कहने दो, आप सुनने को आए हैं, सुनिए। मैं आपके नारों का मोहताज नहीं हूं। खुदा के लिए सुने बात को, समझे बात को। यही हाल है हमारी कौम का, यही हाल है हमारी कौम का। हम कैसे हैं मालूम आपको? एक सोडा बोतल की तरह है, हिला के खोल दो उड़ गया और उसके बाद बैठ गया। अकबरुद्दीन ओवैसी सोडा बोतल की तरह उठने वाले लीडर का नाम नहीं है या उनका लीडर नहीं है। हम ऐसे हैं जो एक वक्त उठते हैं तो दुनिया को उठाते हैं। अगर हमारा यही रवैया रहेगा कि सिर्फ जज्बात, तो हम जज्बात से जंग नहीं जीत सकते, हिकमत के साथ जीत सकते हैं। अगर हमको जिद्दोजहद करना है तो आगे बढ़कर होशमंदी के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ आगे बढ़ना होगा। आज हालात को समझो, हालात को देखो। जब मुसीबत आती है तो कोई हमारे दरमियान में नहीं रहता। अरे जोश को होश से जोड़ो, होश को जोश से जोड़ो। जज्बाती नारे, जज्बाती तकारीरें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि हमको हिकमत के साथ काम करना होगा। अगर आज आपको कामयाबी हासिल करनी होगी तो सबसे पहले अपने सफों से इंतशार का खात्मा करना होगा। अगर इंतशार का खात्मा नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। तारीख गवाह है कि हर दौर में
हमको नुकसान हुआ है तो अपने इंतशार से हुआ है। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद रहेगा तो हम हालात का मुकाबला कर सकेंगे। भाई मेरे, अगर आप श्लोक सुनना चाहते हैं तो फिर मैं करूंगा तकरीर, नहीं करना, अगर नहीं सुनना है तो ठीक है भाई, मैं चला जाता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों ने ही देखा कि तकरीर के इब्तिदा में खांसी ठसके आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी दूर का सफर इस हालत में तय करके आया हूं तो इस वजह से आया हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद के मुसलमानों का भी खरजदार है। 40 दिन आपकी सरजमीन पर रहा, न सिर्फ आपकी सरजमीन से बल्कि आपसे भी मोहब्बत है, इसलिए आया हूं। अगर आप लोग अपने जोश को, अपने जज्बात को अगर ख्वाबों में नहीं रखेंगे तो फिर कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। पांच मिनट बैठ जाइए। आदिलाबाद से हैदराबाद गया था, हैदराबाद से आज पहली मर्तबा निकला तो आदिलाबाद आया हूं। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों की नजर थी आज कि आदिलाबाद में अकबर ओवैसी क्या बोलेगा और आप किस तरीके से पेश आएंगे। और आज हमने ये पैगाम दे दिया कि हमारे लीडर, हमारी जमात हमसे बैठने को बोलेगी तो हम बैठ जाएंगे, खड़े रहने को बोली तो खड़े रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसी मोहब्बत है, ये मोहब्बत किसी दूसरी जमात में नहीं है। ये ऐसा जज्बा है, ऐसी निस्बत है, ऐसा रिश्ता है जो दूसरों में नहीं है, वो हम में है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज देखने वाला देखकर हैरत भी कर रहा होगा कि ये लोग सिर्फ अकबर ओवैसी को चाहते नहीं हैं, सुनते भी हैं और जब बोलते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं। और इस आपके जज्बे की, आपके इस मोहब्बत की, आपके इस खुलूस की, आपके इस रिश्ते की नजर चंद अशार करता हूं, आपके लिए है और आपके जरिए सारे उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि
इस मुल्क का सबसे बड़ा अक़लियत मुसलमान कमजोर है, उनसे इन मुसलमानों की तरफ से चंद अशार पेश करता हूं।